नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। इसके अंदर डिफरेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई है। सबसे पहली वैकेंसी है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड सर्विलांस इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अनरिजर्व पोस्ट है 2। ये पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी आइडेंटिफाइड है, तो PWBD कैंडिडेट्स इसको चेक कर लें, उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है और वो किसके लिए एलिजिबल है। इसमें पे स्केल रहेगी L11 इन द 7th CPC, एज 40 ईयर्स है। असेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस है टोटल कंबाइंड 5 years एक्सपीरियंस इन ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स टेकन टुगेदर: working experience in communication, navigation and surveillance system which may include satellite communication system, experience in regulatory audits, technical audits, quality audits pertaining to communication, navigation and surveillance system, maintenance and inspection of communication, navigation and surveillance system. Qualification may be relaxed by the Union Public Service Commission. Duties है amend CR, file differences with ICAO, develop handbooks and training, conduct inspection, oversee CNS service providers, issue directives, review documents, participate in workshops and perform assigned duties to enhance directorate's performance. हेडक्वार्टर रहेगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, न्यू दिल्ली। प्लेस ऑफ पोस्ट DGCA, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बट ऑल इंडिया बेसिस की लाइबिलिटी रहेगी। एज पर रिक्वायरमेंट जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकंड पोस्ट है 9 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। SC की 2 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 4 पोस्ट है, अनरिजर्व पोस्ट 2 है। ये भी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आइडेंटिफाइड है, तो इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसको चेक कर लें। पे स्केल है L11 इन द पे मैट्रिक्स 7th CPC प्लस NPA, एज 40 ईयर्स है। असेंशियल क्वालिफिकेशन है ए रिकॉग्नाइज्ड MBBS डिग्री। क्वालिफिकेशंस इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ 3rd शेड्यूल to the Indian Medical Council Act 1956. Holders of educational qualification included in part 2 of 3rd schedule should also fulfill the conditions specified in subsection 3 of the section 13 of Indian Medical Council Act 1956. Postgraduate degree in the concerned specialty or super specialty mentioned in the section A of the schedule 6 from recognized teaching institute, doctorate of medicine endocrinology or diplomat national board endocrinology or doctor of medicine/pediatrics with 2 years special training in endocrinology or diplomat national board medicine or pediatrics with 2 years special training in endocrinology. Experience at least 3 years teaching experience as senior resident or tutor or demonstrator or registrar or assistant professor or lecturer in concerned specialty or super specialty in recognized teaching institution after obtaining the first postgraduate degree. फिर कुछ जनरल नोट्स दे रखे हैं, तो जो कैंडिडेट्स है कंसर्न वो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। ड्यूटीज़ जो है इम्पार्ट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस टू अंडर-ग्रेजुएट/ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, टू कंडक्ट एंड गाइड रिसर्च वर्क इन द स्पेशलिटी, to render patient care in the specialty, any other duties that may be assigned by the authorities from time to time. Headquarter Delhi with liability to serve anywhere in India. Any condition है, the other condition of service will be laid down in the CHS rules 2014 and other rules in force from time to time. Private practice of any kind whatsoever shall not be allowed, including any consultation and laboratory practice. The candidate selected will, if so required, shall be liable to serve in any defence service or post connected with the defence of India for a period not less than 4 years, including the period spent in training, if any.
इसमें जो है ordinarily be required to serve as apostate after attaining the training of 45 years, age of 45 years. Third vacancy है 3 vacancies for the post of specialist grade 3rd assistant professor pulmonary medicine, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओबीसी की 2 पोस्ट है, अनरिजर्व 1 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट पीडब्ल्यूबीडी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा। इसमें जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है चेक कर ले। पे स्केल L11 रहेगी इन 7th CPC पे मैट्रिक्स प्लस NPA रहेगा। एज 40 ईयर्स रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन है ए रिकॉग्नाइज्ड MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 3rd ऑफ द 3rd शेड्यूल टू द मेडिकल काउंसिल एक्ट, और अकॉर्डिंगली ये जो है क्वालिफिकेशंस की जो रिक्वायरमेंट मेडिकल की रहती है वो चेक कर ले। एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस है सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर और डेमोस्ट्रेटर और रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन कंसर्न स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी इन द टीचिंग इंस्टीट्यूशन आर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये आप ज़रूर चेक कर लें। ड्यूटी सेम है एज प्रीवियसली, बट उनके सिमिलर फील्ड्स में हेडक्वार्टर दिल्ली रहेगा और एनीवेयर इन द इंडिया पोस्ट किया जा सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट है। ऑर्डिनरली बी रिक्वायर्ड टू सर्व एज अपोजिट अटेनिंग द एज ऑफ 45 years। 4th vacancy, 1 vacancy for the post of assistant architect in Central Public Works Department, Ministry of Housing and Urban Affairs, OBC की 1 पोस्ट है। PWBD कैंडिडेट्स की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, वो चेक कर लें। पे स्केल है 08 इन पे मैट्रिक्स, एज पर 7th CPC, एज 33 years है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एज आर्किटेक्ट। The qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC. Duties are to assist the senior officers in the preparation of design data collection, preparation documents for obtaining approval of plans from all concerned, etc. To prepare preliminary working and detailed drawing and layout plans, municipal drawings and their presentations as required, to supervise and guide juniors and check their drawings and specifications, responsible for management and efficient functioning of the staff attached to them. Headquarter रहेगा डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली विथ लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। 5th वैकेंसी है 6 vacancies फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रिलर इन चार्ज इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओबीसी 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 1 पोस्ट है, यूआर 4 पोस्ट है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की फंक्शनल रिक्वायरमेंट दे रखी है, इनको चेक कर लें। स्केल है पे लेवल 08 इन पे मैट्रिक्स, एज पर 7th CPC, एज 30 years है। असेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन ड्रिलिंग, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट। 1 year एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन मेंटेनेंस ड्रिलिंग रिग्स और डिप्लोमा इन ड्रिलिंग और माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट। 5 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिलिंग रिग्स। कुछ जनरल नोट दे रखे हैं, उसको भी आप चेक कर लें। ड्यूटीज़ जो है ड्रिलिंग से रिलेटेड रहेगी। हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा रहेगा विथ लाइबिलिटी टू सर्व ऑल इंडिया बेसिस एनी अदर कंडीशन। पीडब्ल्यूबीडी अंडर ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कैटेगरी only mild will be considered M mild only. 6th vacancy है 3 vacancies for the post of engineer and ship surveyor cum deputy director general technical in directorate general of shipping Mumbai, ministry of ports, shipping and waterways। अनरिजर्व पोस्ट 3 है। पोस्ट इज परमानेंट। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे स्केल है L12 इन पे मैट्रिक्स, 7th CPC, एज 50 years है। क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ मेरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 1,
एज स्पेसिफाइड सेक्शन 78 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958. Experience है 5 years सर्विस एट सी ऑफ विच 1 year सर्विस एज चीफ इंजीनियर और सेकेंड engineer. Desirable 1 year experience in survey and inspection of merchant ship and 1 year experience in survey, inspection and examination of merchant ship. जनरल नोट्स भी दे रखा है, ड्यूटी से रिलेटेड रहेगी, हेडक्वार्टर जो है मुंबई रहेगा. 7th वैकेंसी है, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ शिप सर्वेयर कम डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज. ओबीसी की एक पोस्ट है, परमानेंट नेचर की पोस्ट है और पे स्केल लेवल 12 है. इन पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC है, एज 48 ईयर्स है. असेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. एक्सपीरियंस 8 ईयर्स. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, सर्वे, रिपेयर ऑफ शिप कैरिड आउट इन शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग यार्ड्स और एनी डिजाइन और सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द पीरियड ऑफ डिग्री कोर्स. जनरल नोट भी दे रखा है, चेक कर लें. ड्यूटीज़ भी रिलेटेड रहेगी और हेडक्वार्टर मुंबई रहेगा. और जो है कैंडिडेट्स रिक्रूटेड टू द पोस्ट विल बी गवर्नड और कवर्ड बाय द न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अप विथ इफेक्ट 1/1/2004. इस आप जो है इस लिंक पे upsconline.nic.in पे जाके 14/10/2023 से अप्लाई कर सकते हैं और ORA के थ्रू आप जो है 2/11/2023 तक कर सकते हैं. लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 3/11/2023. इसमें जनरल जो है इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, जैसे PWBD कैंडिडेट्स के लिए दे रखे हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लें. फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कैंसिलेशन नोटिस है, उसको भी आप देख लें. फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस जो UPSC के रहते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप एक बार इनको ज़रूर देख लें बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. जो UPSC के जनरल इंस्ट्रक्शन सभी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए रहते हैं वो डिटेल के अंदर दे रखे हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख लें इनको. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स बेनिफिटेड हो सके. और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिल सके. थैंक यू सो मच.